आणि डाकू ही कथा पंचतंत्र या कथासंग्रहातून घेतली आहे। या कथेत एक डाकू आहे ज्याचे काम आहे चोरी करणे, चोऱ्या करून दुष्कर्म करून तो आपले पोट भरतो। पण आता त्याला या पापातून मुक्त व्हावी आहे, त्यामुळे तो एका संताकडे जातो आणि त्यातून बाहेर निघण्याचे उपाय विचारतो। तेव्हा संत त्याला ते काम न करण्याचे सल्ला देतात, पण प्रयत्न नाही। मग संत त्याला सल्ला देतात की तू तुझे चोरी करण्याचे काम सुरू ठेव, पण ते काम तू माझ्या प्रवचनात येऊन कबूल कर। त्याला आनंद होतो। प्रथम त्याला ते सोपे वाटतात, पण प्रत्यक्ष मात्र केलेली चोरी लोकांना समोर येऊन सांगणे, कबूल करणे त्याला कठीण जाते आणि कबुलीच्या भीतीने तो चोरी करणे सोडून देतो आणि सुखी होतो। एका कुकर्मी डाकूचे स्वरूपन एका सज्जन सुखी A very warm good morning to everyone. As Shri Didinagar Vidyalaya and Junior College is celebrating 100 days reading campaign organized by the Education Department. Today we are going to conduct the 7th week, which is based on characterization of different stories. Now students are going to read out the different villainous characters from their stories. So I like to invite the students. Myself Kanush Kapade, and my story is The Beauty and the Beast, which is written by Dan Stevens. My character name is Beast, which is the central character of the story The Beauty and the Beast. A pampered prince transformed into a hideous beast as punishment for his cold-hearted and selfish ways. The beast, in order to return to his former self, earned the love of a beautiful young woman named Belle, who he imprisons in his castle. All this must be done before the last petal falls from the enchanted rose on his 21st birthday. My name is Niharika Jambilkar. My story name is The Room of Many Colors, written by Ruskin Bond. My character name is Dustin. The Room of Many Colors by Ruskin Bond is a lengthy story, well stretching over 30 pages. This story has no fixed plot. It is rather divided into many subplots and thus handles various circumstances of human lives. The narrator is Ruskin Bond himself, age 7. He lives in an old getting palace with his father. His mother has left him, but why, that's unknown to him. My name is Vedhi Sakre. My story name is The Blue Umbrella, which is written by Ruskin Bond. My character name is Binya. Binya, age 11, is a hilly girl. She lives with her small family in the hills of Garhwal. Her father died when she was 2 years of age. For sustenance, they had 3 tiny terrace fields on which they grew potatoes, onions, ginger, beans, mustard and maize. They don't sell the vegetables in the market but keep it for themselves. They also have 2 cows and the extra milk they sell to others. Self-sustenance is their primary objective of life, not money making. Binya's brother Biju goes to school. Sadly, she does not go to any school. Instead, she looks after the 2 cows, Neelu and Gol. Myself, Prarthi Dagre. My story's title is Shesher Kobita by Rabindranath Tagore. My character's name is Lavanya. It's been more than 9 decades since Shesher Kobita was first serialized, but even then, Lavanya remains as relevant as was when she first shone into popular consciousness. She is a woman who makes her own choices and अमरकांत का पात्र विश्लेषण करने जा रही हूँ। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल की फीस ना भर पाने की विवशता से प्रारंभ होती है। सलीम उसका मित्र जो उसकी फीस देता है। फीस ना भर पाने की वजह अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुटाव है। मेरा नाम प्रफुल्ल पराटे है। मेरी कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मैं आज वकील का पात्र विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आज के युग में वकीलों के जीवन का मुख्य लक्ष्य कानूनी व गैर कानूनी काम की चिंता किए बिना धन कमाना है। जब अंग्रेजी सरकार ने नमक पर पाबंदी लगा दी तो नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया। मेरा नाम श्रेयस चौधरी। आज मैं प्रायश्चित मेरे कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा पंडित परमसुख कहानी के प्रमुख पात्र हैं।
पंडित परम सुख परम लालची है। लालच के विषीभूत होकर ही वह रामू की माँ को प्रायश्चित के लिए पूजा और दान की अधिक सामग्री बताते हैं, जिससे उनके घर का 6 महीने का अनाज निकल जाए। A very warm good morning to everyone. As Shri Jijinagar Vidyalaya and Junior College is celebrating the 100 days reading campaign, today we are going to conduct सुप्रभात। 100 दिवस वाचन अभियान के अंतर्गत श्री दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज महल नागपुर में वाचन अभियान का आयोजन किया गया है, जिसका आज 7वां सप्ताह है। 7वें सप्ताह के अंतर्गत आज हम पात्र विश्लेषण इस उपक्रम को लेने वाले हैं और जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी कहानी के पात्रों का विश्लेषण करेंगे। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम निर्मित मेश्राम है। मेरी कहानी का शीर्षक गबन है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आज मैं कहानी के पात्र रमानाथ का पात्र विश्लेषण करने जा रहा हूँ। रमानाथ उपन्यास का नायक है। उपन्यास के पुरुष पात्रों में उसका प्रमुख स्थान है। उपन्यास की सभी घटनाओं का वह केंद्र बिंदु है। उसके चरित्र के कारण उपन्यास का कथांक विकसित होता चलता है। उसके चरित्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रयाग का गृहस्थ जीवन तथा कलकत्ता का प्रवास काल। रमानाथ का चरित्र प्रारंभ से अंत तक एक ही धारा में प्रवाहित होता चलता है, लेकिन प्रयाग और कलकत्ता की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण उसके चरित्र की भिन्न भिन्न विशेषताएं सामने आती है। प्रयाग से गबन के भय से भागने की घटना भी उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता को सम्मुख में लाती है। मेरा नाम स्प्रुवा भुबरागड़े है। मेरी कहानी का शीर्षक है कफन, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। आज मैं कहानी के पात्र घिसू का पात्र विश्लेषण करने जा रही हूँ। नशाखोर घिसू को नशे की बुरी आदत है। जिस बुधिया के मेहनत के कारण उसका पेट भरता है, जब वह प्रसव पीड़ा के कारण स्वर्ग सिधार जाती है, तो उसके कफन के पैसों को मधुशाला में जाकर नशे में उड़ा देता है। वह मर्यादहीन हो जाता है कि बुधिया के लिए कफन भी लेने जाना है। जब वह मधुशाला के सामने बैठकर शराब और कचौरी खा रहा था, उसके सामने भिखारी काफ़ी देर से देख रहा था। बची हुई कचौरी उसको देते हुए नशे में पहली बार दान करने की खुशी महसूस करता है। मेरा नाम स्पंदन टेंडुलकर है। मेरी कहानी का शीर्षक गोदान है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। मैं आज गोबर इस पात्र का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। गोदान उपन्यास में गोबर का चरित्र चित्रण। गोदान में प्रेमचंद ने अपने पात्रों को मनोभावों को केवल बुद्धि से ही नहीं वरन हृदय से भी समझा है। यही कारण है कि उनके पात्र पाठकों के हृदय एवं मन दोनों को ही छू लेते हैं। उनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। उसमें हम निम्न चारित्र विशेषताएं देखते हैं। विद्रोही स्वभाव। गोबर अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र है, परंतु उसका